So now guys, we are starting our day 5 of data science internship, and in today's session we will be discussing about functions in Python programming. So this session is going to be an important session because functions are something which we are going to use a lot. However, in Python programming projects, data science, machine learning projects, we will be using inbuilt functions more. But sometimes there will be a situation in which you need to define your own function. Okay, and we call this concept as user defined function. As of now, you have learned many inbuilt functions like print, type, lister, tuple, setter. These are what? These are inbuilt functions. But the thing is, in Python programming, you can create user defined function as well. Meaning, आप लोग अपना functions भी बना सकते हो Python programming में. So please try to understand very carefully that what is function and what is the need of the functions in Python programming. So first of all, a function is a block of code which only runs when it is called. ये line guys बहुत important है. A function is what? A function is a block of code which only runs when it is called. You can pass data known as parameter into a function, and a function can return data as a result. Now the thing is, how we can define function in Python programming? It's quite simple. In order to define a function in Python programming, we need to use this def keyword. Okay, this def keyword you will be using to define a function in Python programming. So this is the syntax guys which we are going to follow. We write def, then space, you can define the function name. Okay, then function name you need to define along with this parenthesis, and then again we need to follow the rule of indentation. और यहाँ पर आप लोग अपने कोड को execute कर सकते हो, the code which you want to execute. So generally we are going to follow this syntax in order to define function in Python programming. Okay. Now let's understand that what is the need of function. अभी हमने लास्ट टाइम एक गेसर नंबर गेम बनाई थी, वहाँ पर तो हमने फंक्शंस को यूज़ नहीं किया था. इससे पहले भी हमने बहुत सारे पाइथन के प्रोग्राम और कोड्स लिखे हैं, कहीं पर भी हमने फंक्शंस को यूज़ नहीं किया. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ फंक्शन? ओके, व्हाई वी आर लर्निंग फंक्शंस? ध्यान से समझना. In Python programming, the function is a block of code defined with the name. Okay, what exactly do we mean by function? A block of code defined with a name. We use function whenever we need to perform the same task multiple times without writing the same code again and again. This is the major important benefit of using function. You and me are going to use function whenever we need to perform the same task multiple times without writing the same code again. इसका एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ. सपोज आप एक पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे हो और आफ्टर एवरी 10 लाइन ऑफ कोड यू नीड टू ऐड 2 नंबर्स. हर 10 लाइन के कोड के बाद आपको 2 नंबर को ऐड करना है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट एडिशन कोड अगेन एंड अगेन, आप उस एडिशन के कोड को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दो. ओके, और जहाँ पर भी आपको लगे कि मेरे को 2 नंबर को ऐड करना है, सिंपली जस्ट कॉल दैट फंक्शन. अंडरस्टूड? अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे ना डेफिनेशन को, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि दैट व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन. ओके, मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ. वी यूज फंक्शंस whenever you want to perform the same task multiple times without writing the same code again and again. Function can take arguments and even can return the value. Okay, now Python has a dry principle. Dry की फुल फॉर्म क्या होती है? डोंट रिपीट योरसेल्फ. मीनिंग आप सेम कोड को बार बार मत लिखो, उस कोड को एक फंक्शंस के अंदर लिख दो, और जब भी आपको उस कोड को यूज करना हो जस्ट सिंपली कॉल दैट फंक्शन. सो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय ड्राई? ड्राई मीन्स डोंट रिपीट योरसेल्फ. कंसिडर अ सिनेरियो वेयर वी नीड टू डू सम एक्शन और टास्क मेनी टाइम. हम एक पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इमेजिन करो कि एक टास्क है जो हम लोगों को बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा है.
So we can define that action only once using a function, and we can call that function whenever required to do the same activity. समझ में आ गया? So basically, instead of writing the same code again and again, just define that code in a function, and whenever you need that function, just call it. So function improves efficiency and reduces error because of the reusability of a code. कोई अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि what is the benefit of using the function, so just simply say reusability of a code. Once we create a function, we call it anywhere and anytime. The benefit of using a function is reusability and modularity. जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे ना, स्पेशली रियल टाइम प्रोजेक्ट, 100% you will be going to use the functions so that you don't need to write the same code again and again. And modularity means कि हम एक bigger problem को small chunks में divide कर देते हैं with the help of functions. Okay, suppose करो आप एक है ना टिक टैक टो गेम बना रहे हो. Okay, उस टिक टैक टो के गेम में आपको विनिंग का भी कोड लिखना है, आपको अगर कोई यूज़र हार रहा है तो उसका भी कोड आपको लिखना है. सो लेट अस से दैट विनिंग कोड वी कैन राइट इन अ फंक्शन. उस फंक्शन को आप कुछ भी नाम दे दो, विनिंग अ गेम. जब आपका यूज़र उस गेम को हार जाए, उसके लिए आप एक और फंक्शन बना लो, उसका आप लोग नाम दे दो लूजिंग अ गेम. अब इस फंक्शन को बनाने का बेनिफिट क्या है? सपोज करो कि आपको विनिंग फंक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको डायरेक्टली उस फंक्शन पे जाना, चेंज कर दो और काम खत्म. पूरे कोड में आपको ढूंढने की नीड नहीं है. आपको अगर आपका यूज़र हार रहा है, कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, सो जस्ट सिंपली फाइंड दैट फंक्शन लूजिंग अ गेम और आप उसमें चेंजेस कर सकते हो. सो फंक्शन प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीडेबिलिटी. ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फंक्शन का, वो क्या है? रीयूजेबिलिटी. ओके, डोंट रिपीट योरसेल्फ. ठीक है, अब चलो देखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं. ओके, सो गाइस, फंक्शंस को आप पैरामीटराइज फंक्शन भी बना सकते हो, नॉन पैरामीटराइज भी बना सकते हो. आप अपने फंक्शन को इस तरीके से भी बना सकते हो कि वो आपको कुछ रिटर्न करके दे. ओके, दीज सिनेरियोज टोटली डिपेंड ऑन आवर प्रोग्रामिंग नीड. ओके, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं आप हमेशा पैरामीटराइज फंक्शन ही बनाओ, या आप हमेशा एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो आपको वैल्यू रिटर्न करके दे. Actually, all these scenarios depends upon our requirement. But हाँ, as a Python developer, आप लोगों को पता होना चाहिए कि syntax क्या है. So let's take an example of function without parameter. Okay, यहाँ पर एक मैं simple सा function बना रहा हूँ, function without parameter. Now, what do we mean by parameter? Parameter is nothing. Parameter is a data which we pass to our function. Okay, but यहाँ पर मैं एक function बना रहा हूँ जिससे मैं कोई भी data pass नहीं करूँगा. Okay, so let us say we need to use this define def keyword. यहाँ पर guys आप अपने function को name दे सकते हो, keeping the variable rules in your mind. Okay, आपका न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिविटी का इशू आपके फंक्शंस के नेम में भी रहेगा. सो जब भी आप अपने फंक्शंस को कोई नेम दोगे ना, बस वो वेरिएबल रूल्स एक बार रिकॉल कर लेना. ओके, आई टोल्ड यू दैट फंक्शंस यू नीड टू डिफाइन विद दीज पैरेंथेसिस. हियर वी नीड टू राइट कॉलन, एंड हियर you can define the code which you want to execute. Okay, welcome ninjas to iGurus. Okay, so guys, here I have defined one function. अब इस function से बाहर आ जाते हैं. I'll press backspace. Okay, and this is how in Python programming we can define the function. Now you focus on my screen when I'm going to run this cell. देखो कुछ भी नहीं हुआ. Okay, ये print message आपको तब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे. So here guys, we have just defined a function. Okay, now how to use this function? In order to use this function, you have to call this function. अब इस function का name क्या है? Greet user. So now guys, here I am doing what? I am calling the function. Okay, इसे कहते हैं function calling. Okay, now here what we are doing is we are calling the function. So now guys, if I am going to run this cell, okay, so here it will print this message for you, welcome ninjas to
gurus. Okay, so function is what? A function is a block of code, okay, which will run only and only when it is being called. Okay, अब देखो अगर मैं दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करूँगा, greet user, now 2 times I am going to get this message, welcome ninjas to iGurus. Okay, अब गाइस सपोज करो कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो और आपको ये जो मैसेज है हर 10 लाइन ऑफ कोड के बाद डिस्प्ले करनी है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंट फंक्शन अगेन एंड अगेन, ये प्रिंट फंक्शन हमने एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दी है, एंड वेन एवर यू नीड टू प्रिंट दिस मैसेज जस्ट सिंपली कॉल दिस फंक्शन. ओके, and now this is an example of function without parameter. Without parameter means we are not passing any data inside this function. Alright, so now guys I will be explaining you a function with parameter. Okay, in the next cell I will be explaining you function with parameter. Okay, now guys what do we mean by function with parameter? देखो, आप Python प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बना सकते हो और उन फंक्शंस में आप कुछ डेटा भी पास कर सकते हो. ओके, सो मीनिंग लेट्स से हियर आई एम डिफाइनिंग वन फंक्शन. ओके, एंड लेट अस से द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज कोर्स फंक्शन. ओके, एंड इन दिस फंक्शन आई विल बी डिफाइनिंग 2 पैरामीटर्स. ओके, लेट्स से नेम. ओके, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कोर्स नेम. ओके, नाउ गाइस व्हाट डू वी मीन बाय दिस नेम एंड कोर्स? दैट मीन्स to this function you are passing 2 data. ये आपका पहला डेटा हो गया, ये आपका दूसरा डेटा हो गया. Okay, here you can define as many parameter as you want. Okay, अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ. In future guys you can pass as many parameter as you want. Okay, now what this function will do, it will print hello, whatever name you are going to pass. Again I'm writing another print function, you are enrolled for. Okay, and here guys I'm going to pass this course name. Okay, so this is how I am using these parameter hello name and you are enrolled for this course name. Now the thing is, whenever you are going to define a function with a parameter, you cannot call your function like this. Okay, अब मैं अपने function को guys इस तरीके से कॉल नहीं कर सकता. Now what happen if I try to call my function like this? See, when I run this cell, it will going to give me an error. Okay, और error देखो क्या कह रहा है कि this function required 2 argument name and course name. ठीक है, तो कितनी सिंपल है Python प्रोग्रामिंग, इतने प्यार से आप लोगों को बता रही है कि देखो इस फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर है और वो आर्ग्यूमेंट्स है नेम और कोर्स नेम. सो मीनिंग इफ यू वांट टू कॉल दिस फंक्शन यू नीड टू पास अ डेटा. ओके, आपको क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डेटा आपको पास करना पड़ेगा. सो लेट्स से दिस इज माय फर्स्ट डेटा जॉन. ओके, एंड दिस इज माय सेकंड डेटा पाइथन. ओके, सो गाइस नाउ व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, ये जो आपका जॉन है ये पास हो जाएगा इस वेरिएबल नेम में. ये जो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है पाइथन, ये पास हो जाएगा इस वेरिएबल कोर्स नेम में. सो मीनिंग व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, दिस जॉन विल बी पास्ड ओवर हियर. मीनिंग ये जो नेम है अब आपके जॉन से रिप्लेस हो जाएगा और ये जो पाइथन है ये अब आपके कोर्स नेम से रिप्लेस हो जाएगा. ओके, सो नाउ यू कैन सी व्हेन आई ट्राई टू रन दिस सेल, नाउ हेलो जॉन यू आर एनरोल्ड फॉर पाइथन. Okay, so can you see in this name what we are getting? We are getting this data. Can you see that in this parameter what we are getting? We are getting this data. अब लेट्स से चलो दोबारा से मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ. ओके, एंड दिस टाइम आई एम पासिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन एलेक्स. ओके, एंड हियर गाइज आई एम गोइंग टू पास डेटा साइंस. सो नाउ व्हाट गोइंग टू बी हैपन हियर, name will be John and course name will be Python, but in line number 8 name will be what, Alex, and this course name will be what, data science. Okay, so this is an example of your function with the parameter. So we are going to define a function with parameter whenever you require to pass data to your function. So यहाँ पर आप क्या data pass कर रहे हो, John and Python. In line number 8 what we are doing, we are passing Alex and this data science. So these are what guys, these are an example of your function with parameter. Please try. So guys यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ.
Now either you can call this as a parameter or as an argument. Okay, कुछ डेवलपर्स इनको पैरामीटर्स कहते हैं, कुछ डेवलपर्स इनको आर्ग्यूमेंट कहते हैं. You can call them both. Now guys, in Python programming we have a concept of default argument as well. Okay, so let us say मैंने यहाँ पे एक function बनाया, define function 1. Okay, and let us say course is equal to Python. Okay, and now guys I'm going to print this message, course name is, okay, and I'm going to use this variable course. Okay, now what do we mean by this syntax guys? This is your default argument. अब देखो यहाँ पर क्या benefit है, if as a user I'm going to call this function, okay, और मैं यहाँ पर एक data pass कर देता हूँ, let's say data science. Okay, now let me run this cell and you can see that the course name is what, data science. अभी जस्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर हम इस फंक्शन के अंदर एक डेटा पास कर रहे हैं. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड फंक्शन. सो जैसे ही आपका यूजर यहाँ पर एक डेटा पास करेगा, दिस डेटा विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस कोर्स. मीनिंग इस कोर्स में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग द डेटा साइंस. Then what is the benefit of this default argument? Let us say guys, if I try to call this function like this, okay, मैं देखो यहाँ पर कोई भी information पास नहीं कर रहा हूँ. So default, by default this course will going to take this value Python. ठीक है, so meaning if your user is passing the value, good, okay, we will replace that value over here. But let us say if your user trying to call this function like this, so no worry, हमारे पास यहाँ पर एक default value already है. So अगर आप कोई data pass कर दोगे, so that data will be passed over here. But अगर आप data pass नहीं करेंगे, so it doesn't matter, this default argument will take care of this. Okay, so यहाँ पर देख सकते हो line number 5 में मेरे को कोई error नहीं आ रहा है. Course name is what, Python is the default value. Okay, so कुछ examples में आप लोगों को Python functions की definition इस तरीके से भी दिखाई देगी. So that means here we are using the concept of default argument. Okay, execute this. So after this guys, now we will discuss about function with the return statement. Okay, as a developer you are going to define a function with the return statement. ये आप लोगों ने Java, C++ में भी देखा होगा. Okay, that most of the time as a developers we define function with return statement. अब इसका क्या मतलब होता है कि function with return statement? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, check even odd. Okay, and here I'm going to pass one number. So let us say now here what I'm doing is, if the num mod2 is equal to 0, then I'm going to print even number. Okay, then here I'm going to print even number, else I'm going to print odd number. Okay, so ये जो हम even और odd number check करें, ये check करें with the help of the function. Okay, let me take one integer number from the user. Let's say user input. एक integer input मैं अपने user से ले लेता हूँ, enter any number. Okay, and now I'm going to call this function check even odd. और देखो यहाँ पर ये यूजर के इनपुट को हम कर देते हैं पास. ओके, सो गाइस व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, देखो आपका ये सेल यूजर से इनपुट ले गए एंड वट एवर इनपुट योर यूजर विल गिव यू, वी आर पासिंग दैट इनपुट टू दिस फंक्शन. ओके, फिर ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन चेक करेगा कि देखो अगर नंबर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं और अगर रिमाइंडर 0 है तो येस इट इज इवन नंबर, एल्स इट इज ऑड नंबर. सो लेट मी रन दिस सेल. एक सिंपल सा फंक्शन हमने बनाया, एंटर इन नंबर 23. सो यू कैन सी दैट योर फंक्शन विल गोना टेल यू वेदर इट्स एन इवन नंबर और वेदर इट्स एन ऑड नंबर. अब सपोज करो गाइज आप पाइथन का एक प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड आफ्टर एवरी फ्यू लाइन ऑफ कोड यू नीड टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड. सो कैन यू नाउ imagine that instead of writing this code again and again, now we just need to call this function. Okay, so I hope that this point is clear to you, that functions provide code reusability. So meaning instead of writing these 4 lines of code again and again,
अब हमको जब भी इवन और ऑड चेक करना होगा, वी जस्ट नीड टू सिंपली कॉल दैट फंक्शन, ओके। और ये फंक्शन एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, सो यहाँ पर हमको एक डेटा पास करना होगा, ओके। सो दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन, बट my main objective here is to explain you function with return statement, okay। generally आप लोग function बनाओगे with return statement, so meaning देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपका फंक्शन डिसाइड कर रहा है ये इवन नंबर लिखना है या ऑड नंबर लिखना है। समटाइम्स वी वांट आवर फंक्शन जस्ट to perform a task for us, okay। you are going to define a function and that function will going to perform a task for you. Now you will decide what to do with that action, so meaning हम function के अंदर एक logic लिखेंगे, function उस logic को compute करेगा और आपको जो भी result होगा वो return करके दे देगा। so that is an example of function with return statement। देखो ध्यान से देखो, सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, डिफाइन चेक इवन ऑड, ओके। बट इंस्टेड ऑफ दिस आई एम यूजिंग वन रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, एंड आई एम राइटिंग लाइक दिस, num mod 2 is equal to 0, okay। that's it, okay। so here what this function will gonna do, ये फंक्शन आपसे एक नंबर को नंबर रिसीव करेगा एंड इट विल गोइंग टू परफॉर्म दिस कंप्यूटेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ओके। मीनिंग हेयर योर फंक्शन इज नॉट प्रिंटिंग कि ये इवन है या ऑड नंबर है, यहाँ पर बस आपको फंक्शन ये एक्सप्रेशन कंप्यूट करेगा और आपको एक वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस वैल्यू के साथ क्या करना है। तो देखो यहाँ पर आई एम अगेन गोइंग टू टेक द यूजर इनपुट, ओके, एंड दिस टाइम what you need to do is you can call this function, okay, you can call this function and I told you that this function will going to give you a return value, या तो वो true देगा या आपको false देगा। now that return value I am saving here in this result, okay। और चलो यहाँ पर उस return value को हम print भी करा लेते हैं। so let me run this cell, here I am writing this 26, so you can see that it is going to return you the true। डिफरेंस समझ में आया। देखो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है, आपका फंक्शन प्रिंट कर रहा है इवन नंबर या ऑड नंबर, बट यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को ये कमांड नहीं दे रहा कि आप प्रिंट करो ये ऑड है या इवन है। मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को इतना सा कह रहा हूँ कि यू जस्ट परफॉर्म दिस कंप्यूटेशन फॉर मी एंड जस्ट रिटर्न बैक दैट रिजल्ट टू मी, ओके। सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन। नाउ व्हेन यू कॉल दिस फंक्शन प्लीज रिमेंबर that this function will going to return a value, और ये return value मैं यहाँ पर इस वाले वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ, okay। so most of the time guys as a developer you are going to define function with return statement। you will ask your function to perform computation for you and you will ask your function just return that result to me, okay। आप यहाँ पर मत लिखो इवन है या ऑड है, आप बस ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करो और जो भी वैल्यू आ रही है वो मुझे रिटर्न करके दे दो। उसके बाद आप लोगों के ऊपर है कि आप उस वैल्यू के साथ क्या करना चाहते हो, ओके। लेटर से आप देखो इस वैल्यू को हम लोग ये गाइस यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ भी। अब आप एग्जांपल है, लेट्स से इफ रिजल्ट प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि देखो जब आपके पास ये वैल्यू रिटर्न होकर आ जाती है, अब आप इस वैल्यू के साथ कुछ भी करो, आप इवन ऑड चेक कर लो या किसी भी पर्पस के लिए से यूज कर लो। सो लेट अस से आई एम गोइंग टू गिव 78, सो यू कैन सी दैट इट्स एन इवन नंबर, अंडरस्टूड। और अगर आपको ये लॉजिक भी नहीं लिखना है सो दैट डजंट मैटर, यू कैन जस्ट सिंपली प्रिंट दैट रिटर्न वैल्यू, ओके। सो एग्जाम्पल कैन बी एनीथिंग एज, लेट्स से 45, सो नाउ हियर वी आर गेटिंग फॉल्स, अंडरस्टूड। So again I will repeat guys, what do we mean by function with return statement। यहाँ पर आप अपने फंक्शन को बोलोगे कि प्लीज परफॉर्म दिस कंप्यूटेशन फॉर मी, ओके, एंड रिटर्न दिस वैल्यू बैक टू मी, ठीक है। तो जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन आपको ये वाली वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। और ध्यान से देखो वो जो रिटर्न वैल्यू है वो मैं इस वाले वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ, ओके। एंड व्हेन आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस रिजल्ट वी आर गेटिंग दिस फॉल्स बिकॉज द नंबर इज 45,
देखो यहाँ पर आपका क्या फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आपका फंक्शन खुद ही बॉस बन रहा है. ओके, it is printing even or odd number, but let us say here in this example I don't want my function to print even odd, just perform this computation and return me the result. Okay, so this is an example of function with return statement. अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूँगा. Guys, what happen if we write print? Okay, print. Okay, and I'm writing this extra line. So see what's going to be happen if I now run this cell. Okay, enter any number 67. Okay, so guys, can you see that it will just return this value? So meaning this return will be treated as what? It will be treated as the last line of your function. इसके बाद आप जो भी लिखोगे extra line, whatever rest of the code, it won't work. Okay, so guys, return will be treated as the last line of your फंक्शन. इस रिटर्न के बाद अगर आप फंक्शन में कुछ भी लिख रहे हो, आप देख सकते हैं आपको फाइनल रिजल्ट में वो नहीं मिलेगा. ओके, सो प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग आफ्टर दिस रिटर्न. दिस इज जस्ट द की पॉइंट. ये जावा में भी यही लॉजिक है, आपके C++ में भी यही लॉजिक है कि रिटर्न आपका लास्ट स्टेटमेंट रहेगी, इसके बाद आप लोग कुछ भी मत लिखना. ओके, प्लीज एग्जीक्यूट दिस गाइस एंड चेक. ठीक है, और अगर आपको दोनों लिखने हैं तो लेट मी मिनिमाइज इट. Okay, you can write the both. So here हमारा यहाँ पे फंक्शन प्रिंट कर रहा है इवन और ऑड, और यहाँ पर हमारा फंक्शन हमको एक वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है. प्लीज एग्जीक्यूट द बोथ टू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑलराइट, सो नाउ गाइस लेट्स हैव अ क्विक एग्जांपल. एक सिंपल सा एग्जांपल एग्जीक्यूट करके देखते हैं फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट. लेट्स से वी नीड टू राइट अ फंक्शन दैट कैन प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग इन अ रिवर्स ऑर्डर. Okay, we need to write a function, and that function should print the given string in a reverse order. Okay, so what we can do is guys, here आप अपने function को कुछ भी नाम दे दो. Let us say define string reverse. Okay, this function is going to receive some word. Okay, and what this function will do, this function will going to return word -1. Okay, here we are playing with the indexing and slicing. And now guys, you can just use this function string reverse. Okay, यहाँ पर चलो मैं पास करता हूँ Python as easy. Okay, this function is going to return guys. So यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लो result 1. Okay, and you can print that result 1. ठीक है, दोबारा से इसको एक और बार यूज़ कर लेते हैं. ओके, एक और वेरिएबल में बना रहा हूँ result 2, and this time I am passing this information. Hi Guru's internship. Okay, and now guys, what you can do, you can print your result 1, and even you guys can print your result 2. So here guys, what our function will do, here our function will going to receive one data. So Python is easy data हम यहाँ पर pass करें, and this function will going to print this information in a reverse order. Okay, here we are playing with the indexing, slicing. Okay, -1, -2, -3. So all your string will be printed out in a reverse order. ठीक है, अब देखो गाइस, सपोज कर अब आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और क्विकली आपके इंटरव्यूअर ने पूछा राइट अ फंक्शन और राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्ट्रिंग इन अ रिवर्स ऑर्डर. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाय जस्ट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड वी कैन प्रिंट द स्ट्रिंग इन अ रिवर्स ऑर्डर. ओके, यही अगर मैं आपको बोलूँ C++ जावा में ना, तो आप लोगों को अपना लॉजिक, अपना कोड लिखना पड़ेगा, बट पाइथन मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू. ओके, सो अगेन व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिसीव वन डेटा फ्रॉम यू, एंड दिस फंक्शन विल परफॉर्म दिस कंप्यूटेशन एंड रिटर्न बैक यू द रिजल्ट. और वो जो रिजल्ट रिटर्न होके आ रहा है, वी आर सेविंग इन रिजल्ट 1. इस स्ट्रिंग का वी आर सेविंग द रिजल्ट इन रिजल्ट 2. Okay, so from now onwards guys, we are going to use this approach most of the time. We will define the function, we will pass data to it, and then we are going to use this return statement. Please try. The next concept which I will be explaining you is the pass statement in Python programming. In Python, the pass is the keyword, okay, which won't do anything. Okay, ये pass क्या है? It's a keyword,
And what this keyword will do for you guys? Nothing. It won't do anything. Sometimes there is a situation where we need to define a syntactically empty block. Okay, we can define that block using the pass keyword. When the interpreter finds a pass statement in the program, it returns no operation. ठीक है, रियल टाइम एग्जाम्पल आप गाइस समझो कि यू आर डिफाइनिंग वन फंक्शन, ओके, एंड लेट्स नेम दिस फंक्शन अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन. ओके, आप क्या ना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बना रहे हो, बट दिस फंक्शन इज टेकिंग लॉन्गर टाइम देन यूजुअल. ठीक है, अभी हम लोग है ना एक्चुअली में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस फंक्शन में मैं एक्चुअली में डिफाइन क्या करूँ. आई एम अनेबल टू डिसाइड इट्स बॉडी. ओके, अब गाइस देखो प्रॉब्लम क्या है कि चलो ठीक है, मैंने इस फंक्शन को ब्लैंक छोड़ दिया और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और मैंने अपना बाकी बचा हुआ कोड लिखना स्टार्ट कर दिया. देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, व्हेन आई ट्राई टू रन दिस, पाइथन विल गोइंग टू गिव यू एन इंडेंटेशन एरर कि आप अपने प्रोग्राम को इस तरीके से ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा. अब यार कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, अब मेरे को लॉजिक ही नहीं पता लग रहा है कि मैं इसमें क्या लिखूं. ओके, आई एम अनएबल टू डिसाइड द लॉजिक एज ऑफ नाउ. अंडरस्टूड कि आप एक पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे हो गाइस, और उस पाइथन के प्रोजेक्ट में आप काफ़ी सारे फंक्शंस यूज़ कर रहे हो. चलो आप सपोज करो कि 5 फंक्शंस आप लोग यूज़ कर रहे हो, 4 फंक्शंस की डेफिनेशन आपको क्लियर है. ओके, इन दैट फंक्शन आई एम गोइंग टू डू दिस, इन सेकेंड फंक्शन आई विल डू दैट, इन थर्ड फंक्शन आई विल डू दिस, बट there is 5th function in your program and you were unable to decide कि अभी इस फंक्शन में क्या करना है. ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा भी नहीं सकता. क्यों? सपोज करो गाइस ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और अगर इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे हटा दिया तो बाद में हो सकता है कि मेरे को इस फंक्शन के बारे में मैं भूल जाऊँ. ओके, और ये फंक्शन हमारे से मिस हो जाए. अब इसको या तो गाइस देखो 2 सॉल्यूशन है, या तो आप इसको कमेंट्स में डाल दो, या आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, यूज दिस पास स्टेटमेंट. ओके, दिस पास गाइस एक्चुअली विल वर्क एज अ प्लेस होल्डर. ओके, पास आपके लिए क्या काम करेगा, एज अ प्लेस होल्डर. एंड व्हाट दिस पास कीवर्ड विल डू, नथिंग. सो लेट मी रन दिस सेल गाइस एंड नाउ यू कैन सी वी कैन राइट अवर रेस्ट ऑफ द कोड. अब क्या हो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, चलो देख लेते हैं. मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे पास मतलब पेस्ट कर दिया, तो गाइस देखो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. अंडरस्टूड? सो गाइस इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट समटाइम्स वी आर गोइंग टू यूज दिस पास कीवर्ड. ओके, देयर इज अ सिचुएशन वेयर वी नीड टू डिफाइन अ सिंटैक्टिकली एम्प्टी ब्लॉक. ओके, और वो एम्प्टी ब्लॉक आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस पास कीवर्ड. ठीक है, देखो या तो हम क्या कर दें कि या तो हम यहाँ पे फंक्शन लिख दें, कमेंट लिख दें और कमेंट में लिख दें कि दैट आई विल डिफाइन दिस फंक्शन लेटर, वरना आप लोग क्या कर सकते हो कि यूज दिस पास स्टेटमेंट एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, अब जब आपको लॉजिक समझ में आ जाए, क्या करो, इस पास फंक्शन को हटाओ और यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम का लॉजिक लिख दो. दैट्स इट. ओके, सो दिस इज योर पास स्टेटमेंट. ओके, आप लोग एग्जीक्यूट करके इसको एक बार देखो. ओके, सो डोंट गेट पैनिक विद दिस पास स्टेटमेंट. Many times we are going to use this pass statement which will work as a placeholder. कि अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि what logic I should write, so I'll use pass statement and I will start writing my rest of the code. Give it a try. So guys, after this pass statement, now I am explaining you this concept, spatial symbols used for passing arguments. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ना इस आर्ग्यूमेंट को देख के घबरा जाते हैं, बट ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल. आई पर्सनली use this spatial symbol a lot. Okay, so here guys I will be explaining you spatial symbols used for passing argument. जो पहला spatial symbol है ये है हमारा स्टार आर्क्स. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टार आर्क्स. इसकी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि वी कैन यूज स्टार आर्क्स टू हैंडल एनी, ओके, टू हैंडल एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट.
ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड या once in a time we are going to use it. Okay, so what this star args will do, we can use star args to handle any number of argument. Okay, अब गाइस ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ पर एक है ना पाइथन का फंक्शन बनाया. Okay, now while calling this function I am going to pass 3 argument. मैंने यहाँ पे 3 argument पास कर दिए. Python is easy, 3 argument हो गए. ठीक है, मैंने इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल किया. ओके, आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन अगेन एंड दिस टाइम आई एम पासिंग ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, पाइथन फंक्शन. ठीक है, अब मैंने दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल किया. ओके, एंड हियर गाइस आई एम गोइंग टू पास 1 2 3 4 5 6 आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, so now guys can you see that here the number of arguments are not decided. देखो यहाँ पर इस फंक्शन को जब हम कॉल करें तो 3 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं. जब लाइन नंबर 6 में वी आर पासिंग ओनली 1 आर्ग्यूमेंट एंड इन लाइन नंबर 7 वी आर पासिंग हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू इट, 6 आर्ग्यूमेंट्स. सो टू हैंडल एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन पाइथन फंक्शंस यू कैन यूज दिस स्टार आर्ग्स. ठीक है, चलो इस फंक्शन को बनाते हैं. डिफाइन पाइथन अंडरस्कोर फंक्शन, जो भी आपके फंक्शन का नेम है. अब देखो गाइज यहाँ पर हम ऐसे तो नहीं कर सकता कि a, b, c. ओके, if you write 3 parameters then in line number 6 there will be no error, but line number 7 and line number 8 will going to give you an error. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 3 पास कर रहे हैं. ठीक है, ये संभाल लेगा. यहाँ पर 1 पास किया, एरर. यहाँ पर हमने 6 पास किया, एरर. So in order to avoid this we are going to use here this special symbol named as args. Okay, we are going to use this special symbol named as args, and what this args can do, it can handle any number of argument for you. Okay, and now what you can do, let me use for loop here. For I in args, let's say print this I. Okay, so now guys just see the magic. Let me run this cell. Okay, so पहले आप देखो लाइन नंबर 8 ये आपका पाइथन इज इजी प्रिंट होकर आ गया. लाइन नंबर 9 पाइथन फंक्शन प्रिंट होकर आ गया. ओके, लाइन नंबर 10 20 30 40 50 60 आपका प्रिंट होकर आ गया. ओके, so basically in Python programming guys we have this special symbol, and this special symbol can handle any number of argument for you. ठीक है, अब देखो लाइन नंबर 8 में क्या होगा कि इस आर्ग्स में ये आइटरेट करेगा इन 3 वैल्यू पे. पाइथन इज इजी. ओके, सो लाइन नंबर 8 में जब आप इस फंक्शन को कॉल करो सो यू आर पासिंग 3 आर्ग्यूमेंट. सो 1 by 1 दिस आइटरेबल वेरिएबल इज विल गोइंग टू आइटरेट ओवर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट. ठीक है, लाइन नंबर 9 में क्या करेगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया, पाइथन फंक्शन. सो नाउ इन लाइन नंबर 9 वी आर पासिंग ओनली 1 आर्ग्यूमेंट. और लाइन नंबर 10 में क्या करेगा, ये वैल्यू आपकी रिप्लेस हो जाएगी 10 20 30 40 50 और 60. सो व्हाट आई मीन टू से इज इन पाइथन प्रोग्रामिंग दिस स्टार आर्ग्स कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर यू. ओके, प्रिंट फंक्शन है तो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा. पाइथन इज इजी. चलो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं एंड, एक स्पेस यूज कर लेता हूँ. ओके, अब आपको ध्यान समझ में आ जाएगी. देखो पहले क्या आ जाएगा आपका पाइथन इज इजी, फिर आपका प्रिंट होकर आ गया पाइथन फंक्शन, और फिर देखो लाइन नंबर 11 में 10 20 30 40 50 60 प्रिंट होकर आ गया. ओके, सो डोंट पैनिक विद दिस स्टार आर्ग्स गाइस, इट कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. कंफ्यूजन पता है देखो कब होती है, जब आप लोग यहाँ पर अपना नेम लिख दोगे. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर अपना नेम लिख दिया. सो पैनिक होने की आपको नीड नहीं है. ठीक है, पाइथन को बस ये स्टार से मतलब है. यहाँ पर यू कैन राइट एनी नेम टू इट. ठीक है, यहाँ पर आप लोग कोई सा भी नाम इधर लिख सकते हो. करके देखो अपना अपना नाम लिख के, बट मेक श्योर टू यूज दिस स्टार. हाँ, अगर ये स्टार हटा दोगे तो प्रॉब्लम है गाइस. ओके, तो आपको प्रॉब्लम है. ओके, सो दिस स्टार आर्ग्स कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर यू. सो जनरली हम लोग यहाँ पर आर्ग्स लिखते हैं. So I'm going to again rename it like args. But हाँ,
स्टार के बाद अगर आप लोग अपना नाम भी लिखोगे it will work like the same. So use this args if you want your Python function to handle any number of argument. So now guys, I am going to give you a simple program. Do one thing using star args, print all the even numbers. ठीक है, मैं आपको है ना दो लिस्ट दे रहा हूँ. देखो फंक्शन का जो नेम आपका रहेगा ना, फंक्शन का आप लोगों का नेम रहेगा प्रिंट इवन्स. ठीक है, 2 बार आप इस फंक्शन को रन करोगे. ओके, पहली बार आप रन करोगे इसके लिए, ओके, और दूसरी बार आप रन करोगे इसके लिए. ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हाँ हम स्टार आर्क्स की मदद से कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैंडल कर सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यूजिंग दिस स्टार आर्क्स प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स. मीनिंग जब आप फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को कॉल करोगे, इस फंक्शन के सारे इवन नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं. ठीक है, फिर दोबारा से आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इस बार ये आपके नंबर्स हैं, इसमें से आपको इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं. ओके, बट यूजिंग स्टार आर्ग्स. ऑलराइट, सो नाउ गाइज आई एम सेंडिंग यू इन द चैट सेक्शन ये टास्क मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ. सॉल्व दिस टास्क फॉर मी यूजिंग स्टार आर्ग्स. तो करना क्या है, देखो आपको एक फंक्शन बनाना है and the name of that function is going to be print even. ओके, और इस फंक्शन में गाइस आप लोगों को स्टार आर्ग्स यूज करके इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं. ठीक है, तो मीनिंग आप इस फंक्शन को 2 बार कॉल करोगे. एक बार करोगे इस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए, एक बार आप रन करोगे इस फंक्शन को फॉर दिस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, प्लीज ट्राई. सो गाइस, सॉल्यूशंस आप देख सकते हो कि चैट सेक्शन में हमारे पास आ चुके हैं. ठीक है, बहुत सिंपल सी सॉल्यूशंस है. देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भेज दिए. देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार आर्क्स का क्या बेनिफिट है. तो जब फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, हियर वी आर पासिंग मोर देन 15 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. अब यहाँ पर अगर हम स्टार आर्क्स यूज नहीं करेंगे तो कितने आर्ग्यूमेंट आपको डिफाइन करने पड़ जाएंगे, A, B, C, D, E. ठीक है, बट यहाँ पर स्टार आर्क्स का बेनिफिट क्या है, इट कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर यू. देन हियर वी आर यूजिंग लूप फॉर I in number of arguments. We are checking if the I mod 2 is equal to 0, print I, else ignore. ठीक है, सो ये देखो ये फंक्शन आपके लिए क्या करेगा, दिस फंक्शन कैन हैंडल एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर यू. अब यहाँ पर हम पास कर रहे हैं मोर देन 15 आर्ग्यूमेंट्स, इट विल प्रिंट इवन नंबर्स. यहाँ पर हम पास कर रहे हैं ओनली 5 to 7 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगेन इट विल वर्क. So these are what guys, these are the benefit of using this star args keyboard. ठीक है, तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आए guys, आप लोग एक बार चैट सेक्शन में गो थ्रू कर लेना जिनसे नहीं हो पाया है. ठीक है, alright. So now guys I will be explaining you another concept. Okay, ये अब आपका कॉन्सेप्ट होता है फंक्शन lambda function का. Okay, and before this lambda function I will be explaining you one important concept जिसे हम कहते हैं document string. Okay, इसे हम कहते हैं doc string. देखो guys, functions का है ना, मैं आपको exact real time usage बताता हूँ. ठीक है, ध्यान से बना इस concept को. Suppose guys you are working in a company. चलो इस कंपनी का नाम लेते हैं XYZ कंपनी. ओके, एंड यू आर वर्किंग एज अ सीनियर डेवलपर. ओके, यू आर वर्किंग एज अ सीनियर डेवलपर और आपके पास एक टीम है जूनियर डेवलपर्स की. ठीक है, तो ये टीम आपको असाइन करी गई है ताकि एज अ सीनियर डेवलपर यू कैन हेल्प देम आउट. ठीक है, अब आपकी कंपनी को एक टास्क मिला. ठीक है, आपकी कंपनी को क्या टास्क मिला कि हम लोगों को यूज़र से एक इनपुट मिलेगा. ओके, लेट अस से वी आर गोइंग टू रिसीव इनपुट फ्रॉम यूज़र. इस इनपुट को हमें कन्वर्ट करना है एक म्यूज़िक फाइल में, या मान के चलो कि एक स्पीच में. ओके, लेट अस से मेरा है ना एक यूट्यूब चैनल है. ओके, बट मेरी आवाज़ बहुत गंदी है. ठीक है, और मैं ऑटो ट्यून भी यूज़ नहीं कर रहा. ठीक है, मुझे क्या करना है कि जो मेरे YouTube के लेक्चर्स हैं ना,
मैं आपको साउंड रिकॉर्ड करके दूंगा या मैं आपको एक इनपुट दूंगा, आपको उस इनपुट को एक रोबोटिक वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप देखो, आप लोग यार इंस्टाग्राम पे हो गए, फेसबुक पे हो गए, देखिए ना कुछ शॉर्ट वीडियोस होती हैं जिसमें वो लोग रोबोट की वॉइस यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इतनी कैची नहीं है, मेरे को क्या करना है कि अपनी आवाज़ को एक रोबोटिक वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपका क्लाइंट हूँ और मैंने आपकी कंपनी को ये टास्क दिया, चलो ठीक है, अब ये टास्क आपकी कंपनी ने आपको डाल दिया, आप लोग जूनियर डेवलपर हो, आप लोगों को आपकी कंपनी ने टास्क डाल दिया। ठीक है, अब आप जूनियर डेवलपर्स हो, नया नया पाइथन आप लोगों ने सीखा है, बट यू कैन नॉट हैंडल प्रॉब्लम लाइक दिस। ओके, तो आप लोग किसके पास जाओगे? सीनियर डेवलपर के पास। अब देखो, सीनियर डेवलपर बहुत स्मार्ट डेवलपर है, 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये क्या करेगा, ये आप लोगों के लिए एक फंक्शन बना देगा। ठीक है, इस फंक्शन के लिए अंदर ये आपके लिए कोड लिख देगा, दैट्स इट। ओके, आपको बस क्या करना है एज अ जूनियर डेवलपर, यू जस्ट नीड टू यूज दैट फंक्शन। आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है कि यार इस फंक्शन में बंदे ने क्या कोड लिखा, कैसे इसने यूज़र के इनपुट को एक म्यूज़िक फाइल या स्पीच में कन्वर्ट किया। ठीक है, आपको क्या करना है एज अ जूनियर डेवलपर, बस आपको उस फंक्शन को कॉल करना है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो बहुत बार ना गाइस आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी और आप लोग कैसे उसको हैंडल करोगे। एज अ सीनियर डेवलपर आप फंक्शन बना के छोड़ दोगे और जूनियर डेवलपर को फंक्शन यूज़ करना है। अब देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने इस टाइप इनबिल्ट फंक्शन को यूज़ किया। क्या आप लोगों को पता है ये टाइप फंक्शन कैसे बना है, क्या कोड लिखा हुआ है, कैसे ये किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप आपके लिए डिटरमाइन कर लेगा? नहीं ना, हम बस क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग दिस टाइप फंक्शन एंड वी आर हैप्पी। ओके, सो गाइस, ये होती है एक फंक्शन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो लेट अस से चलो देखते हैं कि कैसे यूज़र के म्यूज़िक फाइल को हम स्पीच में कन्वर्ट करते हैं इनपुट को। तो मैं सीनियर डेवलपर हूँ, मेरे को पता लगा कि आप लोगों को एक टास्क असाइन किया गया है एंड यू आर स्ट्रगलिंग, so no worry, as a senior developer I will create function for you and what you need to do is you just need to call that function। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग का क्या लेना देना है? ठीक है, चलो पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ओके, टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, ये फंक्शन आपसे एक यूज़र इनपुट लेगा और एक यूज़र इनपुट को ये टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, अब देखो गाइस, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि लेट अस से यहाँ पर मुझे फंक्शन के बारे में ना एक छोटा सा राइटअप लिखना है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो या तो आप लोग कमेंट्स का यूज कर लो। ओके, लेट्स से दिस फंक्शन विल कन्वर्ट यूजर टेक्स्ट इनटू स्पीच। ओके, ये कमेंट्स का आपको मैंने मतलब बताया था कि ओके, एनीवन, सपोज करो कि आपकी कंपनी में एक नया डेवलपर आया और उसे पता ही नहीं है फंक्शन क्या कर रहा है। कमेंट को रीड करके ही और शी कैन इजीली फाइंड आउट दैट ओके दिस फंक्शन विल कन्वर्ट यूजर टेक्स्ट इनटू स्पीच। ठीक है, या आप क्या काम करो, इस फंक्शन को आप इस डिस्क्रिप्शन को यू कैन डिफाइन इन 3 ट्रिपल कोट्स, 1, 2 and 3। ओके, नाउ दिस विल बी ट्रीटेड एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फंक्शन। ठीक है, अब जो भी जूनियर डेवलपर इस फंक्शन को यूज करना चाहता है, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन राइट लाइक दिस प्रिंट, क्या नाम है इसका, इस फंक्शन का, टेक्स्ट टू स्पीच। और इस डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट करने के लिए या आपको इसकी, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, इन ऑर्डर टू एक्सेस द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग यू कैन यूज दिस सिंटेक्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर doc अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, 2 times अंडरस्कोर है गाइस, ये 1 2 and 1 2। ठीक है, सो नाउ गाइस इफ आई रन दिस सेल, देखो ये क्या करेगा, ये आपके फंक्शन की जो भी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग रहेगी उसको प्रिंट करके दे देगा। कमेंट्स क्या ये आपके लिए काम कर सकते हैं? नहीं। ओके, कमेंट से काम आपके लिए नहीं कर सकता। ठीक है, बट इफ यू आर गोइंग टू राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन ट्रिपल कोट्स, ओके, and if any developers wants to know about that function they can use this doc underscore underscore। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों के सामने सिंटेक्स लिखा है ना गाइस, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ठीक है, इन फ्यूचर यू कैन यूज दिस डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग फॉर प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर फंक्शन कि ये फंक्शन करेगा क्या।
कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं इस फंक्शन में, कैसे इस फंक्शन को हमको कॉल करना है एंड सो ऑन। तो वो जो ब्रीफ राइटअप है ना वो आप 3 ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख दो, ठीक है। अब किसी को भी अगर आपके फंक्शन के बारे में जानना होगा, दे कैन यूज दिस सिंटेक्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। बट गाइस ये तभी चलेगा जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग लिखी होगी। सपोज करो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग ही नहीं लिखी तो क्या आएगा, देखो नन। नन मीन्स यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग डिफाइन फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग यूज़ करोगे जब आप सीनियर डेवलपर्स बन जाओगे या आप एक कंपनी में मिल बांट के एक प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप लोगों को अपने अपने फंक्शंस के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैं उस फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग कैसे एक्सेस कर पाऊंगा, कुछ इस तरीके से, ओके। और ज़रूरी नहीं है गाइस ये लिखना, आप यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि इस फंक्शन के अंदर हमने ये पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है यूज़र इनपुट, ओके। और ये यूज़र इनपुट क्या करेगा, हेयर वी विल पास यूज़र इनपुट एज अ पैरामीटर, ओके। और भी कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। इसको अगर सजाओगे भी ना, देखो इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, तो देखो गाइस अब क्या होगा, ये देख रहे हो। ऑलराइट, सो ये होती है गाइस आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ट्राई करो इसको, फिर ये फंक्शन हम एग्जैक्ट बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन आप लोग ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर आप लोग यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग अप द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अगर आपका कंपनी का बॉस बोले कि ओके यू हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन बट हाउ आई कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट फंक्शन, सो यू कैन यूज दिस doc अंडरस्कोर अंडरस्कोर doc अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ट्राई करो गाइज इसको, इट विल वर्क। सो नाउ गाइज विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, चलो ये एप्लीकेशन हम बनाकर देखते हैं। यूजर हमको एक इनपुट देगा एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनपुट इनटू अ म्यूजिक फाइल और इनटू अ स्पीच। देखो इसके लिए क्या है, हमको एक है ना लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा एंड द नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी इज GTTS Python विच स्टैंड्स फॉर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है ना। ये लिंक मैं आप लोगों को चैट सेक्शन में फॉरवर्ड कर रहा हूँ, या आप लोग क्या काम करो, एक नया टैब ओपन करो और 2 सिंपल से वर्ड लिख दो GTTS और Python। आपको ये पहला वाला लिंक गाइज यूज करना है pypy.org, ओके। नहीं तो मैं आपको चैट सेक्शन में भी ये लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो गाइज ये चैट सेक्शन में मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। देखो ये गूगल की एक लाइब्रेरी है पाइथन के लिए, ओके, विच कैन कन्वर्ट यूजर टेक्स्ट इनटू द स्पीच। इट्स एन API provided to us by Google. Now the thing is we cannot use it directly guys, first we need to install it। आप देख सकते हो at the top we need to execute this command to install this Python library, और जब ये install हो जाएगी we just need to write these 3 line of code to convert any text into speech, ठीक है। तो guys क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ से कॉपी कर लो, okay, and then with the help of exclamation sign, okay, please remember in collaboratory whenever you are going to install any Python library you have to use this exclamation sign, और उसके बाद आप इस कमांड को पेस्ट कर दो pip install GTTS। स्पेलिंग का गाइस काफ़ी ध्यान रखना, देखो G स्मॉल में है और TTS कैपिटल में है, ठीक है। अब आप इस सेल को कर दो रन और वेट करो जब तक आपके पास ये वाला मैसेज नहीं आ रहा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, okay। In my case it's already been installed but no worry, until you will get this message successfully installed GTTS 2.5.0 please run it, okay। Just make sure exclamation sign guys, okay, I'll maximize my screen size, exclamation sign, and then you need to copy and paste। ठीक है। अब देखो हम सीनियर डेवलपर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जूनियर डेवलपरों को नहीं पता कि किस तरीके से हम यूज़र के टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, बट एज अ सीनियर डेवलपर यू नो द ट्रिक, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, उन बेचारों के लिए एक फंक्शन बना दोगे, ठीक है। तो मेक श्योर गाइज, अगेन आई एम रिपीटिंग, एवरीवन नीड टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन।
अगर किसी का कुछ एरर आ रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. इट्स वेरी सिंपल. यू एंड मी वो यूजिंग कोलैबोरेटरी गाइस, तो कोई एरर नहीं आना चाहिए. एक्सक्लेमेशन साइन PIP इंस्टॉल GTTS. ठीक है. अब देखो क्या करना है. ये जब लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल हो जाए, सो एज अ सीनियर डेवलपर व्हाट यू विल डू, यू विल डिफाइन अ फंक्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच. कोई भी फंक्शन का नाम आप दे दो, ज़रूरी नहीं है ये लिखना, कोई भी आप नाम दे दो. ठीक है. दिस फंक्शन विल गोइंग टू टेक अ यूजर इनपुट. ओके. और यहाँ पर गाइस हम 3 लाइन का कोड हमें लिखना है. देखो वो 3 लाइन का कोड क्या है. सबसे पहले हमें ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है बिकॉज वी नीड टू यूज दिस लाइब्रेरी. रिमेंबर गेस अ नंबर गेम में हमने एक रैंडम लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करवाई थी और फिर उसकी मदद से हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया था. सिमिलरली इफ यू वांट टू यूज दिस लाइब्रेरी, यूज इंपोर्ट फ्रॉम GTTS. चलो गाइस, मैं नहीं चाहता कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक करो. चलो शॉर्टकट करते हैं, इसी टैब पे आ जाओ गाइस वापस. देखो स्क्रॉल करो. पहले गाइस आप ये वाली लाइन को कॉपी और पेस्ट कर दो. ठीक है. इंडेंटेशन का ध्यान रखना गाइस. ओके. तो ये लाइन पहले आप कॉपी पेस्ट कर दो. इसका मतलब ये कि फ्रॉम दिस पैकेज यू आर इम्पोर्टिंग दिस मॉड्यूल. ठीक है. या तो आप लिख लो बट आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे. देखो ये GTTS स्मॉल में आएगा, यहाँ पर TTS अपर केस में आएगा. तो इसी टैब में थोड़ा सा स्क्रॉल करो, पहली लाइन को कॉपी करो और गाइज यहाँ पर आप पेस्ट कर दो. ठीक है. ये वाला कोड अब आप लिख सकते हो. ठीक है. अब देखो करना क्या है कि इस मॉड्यूल में ना, देखो ध्यान से देखो कि ये मॉड्यूल में आपको वो यूज़र का टेक्स्ट पास करना है और ये जो एक्चुअली ये इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है और ये फंक्शन आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा. ठीक है. तो अब आप ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर लो. कॉपी पेस्ट. इंडेंटेशन का ध्यान रखना गाइस. तो यहाँ पर गाइस बस हमको हेलो नहीं पास करना, हमको एग्जैक्टली में क्या पास करना है, जो भी हमको यूज़र इनपुट मिलेगा. सो व्हाट दिस मॉड्यूल विल डू, in this using this module you need to pass a user input and now this module will convert your user text into speech. और वो आप कहाँ पर सेव करा रहे हो गाइस, वो आप इस वेरिएबल में सेव करा रहे हो. ठीक है. अब आप क्या काम करो कि इसको सेव करा लेते हैं. जो भी आपका टेक्स्ट कन्वर्ट होगा ना उसको हमने यहाँ पर सेव करा लिया और अब आप इसको कुछ भी नाम दे दो. hello.mp3 रहने देते हैं. ठीक है. तो गाइस देखो सिर्फ ये 3 लाइन का कोड आप लोगों को लिखना है. मैं दोबारा से बता देता हूँ. हमने यहाँ पर इस मॉड्यूल को यूज़ किया. इन दिस मॉड्यूल यू नीड टू पास योर यूजर इनपुट एंड वट एवर इनपुट वी आर गोइंग टू पास, दिस मॉड्यूल विल कन्वर्ट दैट इनटू द स्पीच. ओके. और स्पीच को अब हम सेव करा रहे हैं hello.mp3 के नाम से. आप कुछ भी नाम दे दो, output 1, my output, बट द एक्सटेंशन विल बी .mp3. ठीक है. अब आप इसको रन करो. तो देखो गाइज अब आपने क्या किया, एज अ सीनियर डेवलपर आपने ये कोड लिख दिया, बट एज अ जूनियर डेवलपर मेरे को क्या करना होगा गाइज, मेरे को बस इस फंक्शन को कॉल करना है. दैट्स इट. मुझे क्या करना है, मेरे को कोई टेंशन लेने की नीड ही नहीं है. अब मुझे क्या करना है, एज अ जूनियर डेवलपर आई जस्ट नीड टू कॉल दिस फंक्शन. ठीक है. और यहाँ पर गाइज आप यूज़र इनपुट लेना है ना, तो चलो एक फंक्शन वेरिएबल बना लेते हैं. इनपुट और लेट्स से इसको नाम देते हैं यूजर इनपुट. एंटर एनी मैसेज. ठीक है. आपका यूजर आपको कोई भी मैसेज दे देगा और जो भी आपका अब इनपुट है वो हमने यहाँ पर इस फंक्शन को पास कर दे. दैट्स. ठीक है. देखो जूनियर डेवलपर इतना तो काम कर ही सकता है ना बेचारा कि यूजर से इनपुट ले ले और इस फंक्शन को कॉल करा ले. तो बस अब आपको ये काम करना रहेगा. दैट्स इट गाइस. अब थोड़ा ध्यान से देखना कि आप इसको पहले एग्जीक्यूट करो. मैंने सेल को रन किया, मैंने एक मैसेज डाल दिया, हेलो आई एम लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है. ये मेरा इनपुट हो गया. मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं कोई एरर आएगा. नहीं. ठीक है. अब देखो गाइस ये जो आपका इनपुट है ना, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये स्पीच में कन्वर्ट हो गया. किसने किया, आपके इस फंक्शन ने कन्वर्ट किया. बट ये hello.mp3 फाइल गई कहाँ, ये hello.mp3 फाइल गई कहाँ. तो गाइस ध्यान से देखो, आप लोगों को कोलैबोरेटरी में लेफ्ट हैंड साइड में ये फाइल फोल्डर का आइकन नजर आएगा. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड में देखना ये फोल्डर का आइकन नजर आएगा. आप लोग इस पर क्लिक करो. देखो ये hello.mp3 दिख रही है, जो भी आप लोगों ने अपनी फाइल का नेम दिया होगा.
ये यहाँ सेव होगी गाइस। अब इसको चलो डाउनलोड कर लेते हैं। ये होगी मेरी डाउनलोड और अब आप इसको प्ले कर लो और आप देखोगे कि जो भी आपके यूजर ने इनपुट दिया था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पीच। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ओके, सो वट एवर इनपुट your user is going to give, this Google text to speech will going to convert that user input into the music file. Okay, तो अब आप इसको प्ले कर लो। Hello, I am learning Python programming. ठीक है, तो देखो ट्राई करके देखो गाइस कितनों का हो गया। मेरे को एक बार चैट सेक्शन में आप बताओ। दोबारा बताया तो पहली बात तो इन कोड में प्लीज डू नॉट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक। जब आपका ये सेल रन हो जाए वेयर दिस फाइल विल बी जनरेटेड, आप लोग इस पे जाओ। ओके, इसको डाउनलोड कर लो और प्ले करके देख लो। ठीक है, so this is how guys we can use functions in Python programming. Please try.